Hello everyone, welcome back. Today I have come up with the I consider this as the last part of mixture. This will be the last video on the topic mixture, and let's see if in the future before your exams I will try my level best to come up with some important sums. Before the exams, this is a promise from my side, but you should give the response. If you give the response in the comment section, then I am sure I will be coming up before the exams in the month of February or in the month of February beginning or January. I will come up with some of the questions which are very important for your examination point of view. These questions often come in the exam. These are regular questions of the examination. You will get 50% common question for the Assam board students. CBSE does not have this subject as per my knowledge. So this is up to you. If you ask me, so if you comment, then I will be coming up, and if you do not comment, I will assume that no one is interested in having important questions scoring good marks. I can give you the assurance that you will be getting common questions, because I will be not giving questions from not only mixture, I will be giving questions to you as a whole, commercial mathematics, business mathematics as a whole, from the theory part also, from the practical part also, and if necessary explanation can also be given. That is not a big factor. So show your response. I will be giving you to means the everything of the question paper related things. And lastly, actually I am quite very well interested in making videos of accountancy. If you show your support, means by commenting in the comment section that you want or not to me make videos on accountancy, so if you say, then I will be making videos on accountancy also. I am quite interested in the subject accountancy, because if I make videos on accountancy, that is assurance from my side that I will be covering both theory as well as practical. Other teachers I know very well, some of the private tuition teachers I have seen, even my friends also, they cover only the practical part. Theory is up to the students, but I will be covering both theory as well as practical. And whatever, and this is the thing that I want to say, you please hear it clearly. Whatever I will be giving in the video of the theory part, that will be coming in the exam. That is 100% sure. That is up to my responsibility. हम जो भी यहाँ में देखा theory, वही सब exam में आएगा. एकदम कुछ बाहर का पढ़ने का जरूरत नहीं है. Whatever I will give, just memorize that things. I will explain also, that is not a big issue. Just memorize that things. These will be only coming in your exams. हम पूरा कवर करके देगा, हम आल्टू फाल्टू चीज़ नहीं देगा जो सब नहीं आता. दूसरा बुक में इतना रहता है, इतना एकदम भर के. इतना तुम कहाँ से करेगा? इतना तो तुम करने से बैठेगा 2-3 साल लग जाएगा तुम्हारा 1 साल का कोर्स 2-3 साल में ख़त्म होगा. इसलिए हम बोल रहे हैं, हम लिमिटेड देगा, ज़्यादा नहीं होगा, ऑलमोस्ट शॉर्ट टाइप ही होगा, इतना लंबा भी नहीं देने का कोशिश करेगा. अकाउंटेंसी में इतना लिखने का इतना जरूरत, अकाउंटेंसी चीज़ ही ऐसा है, यहाँ में लिखने का इतना ज़रूरत नहीं है. टू द पॉइंट लिखने से ही होगा, थोड़ा समझा देने से ही होगा, एकदम इजी लैंग्वेज में है. इसलिए हम तुम लोगों को बोल रहे हैं. हम मेरा जो नोट्स है ना, जो हमको मिला है, जो हम यूज़ पढ़ा था, अभी भी पढ़ रहा है, वो सब बहुत ईजी टाइप का है. पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, इजीली लर्न हो जाएगा. ऐसा होगा कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में आके दिखला कि 2 बार 3 बार पढ़ा, लर्न हो गया. ऐसा ही, क्योंकि हम समझा के देगा ना, सब समझा के देगा, तुम सिर्फ 2 बार पढ़ेगा, और हम जो हिंदी में या फिर इंग्लिश में बोलेगा वही वहाँ में लिखा रहेगा, ट्रांसलेटेड क्या रहेगा बस. ओके, अभी हमको याद नहीं है हम कौन सा सम लास्ट किया था, तो सम नंबर तो दे नहीं सकता अभी. आज तो 2 सम कराएगा, दो अच्छा इंपॉर्टेंट समस कराएंगे. तो एक सम से स्टार्ट करता है, ठीक है. ये सब एक्सरसाइज का सम साथ स्टार्ट कर रहा है. हाँ, और वीडियो चाहिए मिक्सचर के ऊपर, कमेंट सेक्शन में लिख दो, कमेंट और मिल जाएगा वीडियोस, और अच्छे एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलेगा. कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा फ्री है, अभी बना सकते हैं, बाद में मत लिखना. हाँ, पहले बोल रहे हैं हम, फरवरी महीना में, मार्च महीना में मत लिखना, मेरा भी एग्जाम है. अभी फ्री है, ऑनलाइन कुछ हो नहीं रहा है, घर में बैठ के बना रहा है तुम लोग के लिए. लिखो, अभी देख लो क्वेश्चन. 42 लीटर्स ऑफ पेंट contains 42 liter of paint contains paint and thinner. हमको मालूम नहीं, नाम याद नहीं है हमको अच्छे से, पर कोई एक व्यूवर कमेंट किया है क्वाड्रेटिक का ऊपर, तो हम क्वाड्रेटिक का ऊपर भी लाने का पूरा कोशिश करेगा, पर थोड़ा लंबा हो जाएगा. मतलब 4-5 वीडियो 6 वीडियो, लंबा टॉपिक है, तो ज़्यादा
वीडियो होगा। ये सब सीधा बात है, ये सब समझ लो। एक वीडियो में ज़्यादा सम होता नहीं है, ज़्यादा सम करने से स्टूडेंट्स कॉन्फ्यूज हो जाता है कभी कभी, तो हम कम सम्स कराता है, पर समझो तुम लोग, समझने से कम हो जाएगा। कंटेंट्स पेंट एंड थिनर इन द रेशियो 4:3। How many liters of thinner must be added mixed, जो मर्जी लिख दो, सेम ही है, to it in order that the mixture may contain paint and thinner in the ratio 4:5. सोल्यूशन, लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन। और एक चीज तुम लोग को बोल रहा है, ये सब एडवाइस है, मतलब ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट एडवाइस समझ के तुम लोग रखो, ये सब काम में आएगा। जैसे देखो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, जो रोल नंबर 1 है वो हमेशा राइट होगा, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी तुम लोग भी राइट हो सकता है, जैसे कोई हम देखा है, ये सब हम लोग का टीचर से हम लोग को गाइडेंस दिया है, जैसे मतलब रोल नंबर 1 कोई गारंटी नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो मतलब गधा स्टूडेंट भी हो सकता है, वो इतना अच्छा भी नहीं हो सकता ना, मतलब दैट इज अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मत करना कि जैसे रोल नंबर 1 का एक आंसर निकला, तुम्हारा और एक निकला, तुम अपना काट के रोल नंबर 1 का आंसर लिख दिया, ऐसा मत करना। ऐसा करने से ना, मतलब बहुत बार देखा, ये हम प्रैक्टिकल बात बोल रहा है, होता नहीं है, मतलब एक्चुअली में तुम्हारा राइट आंसर तुम खुद रॉन्ग करके आ रहा है, मतलब खुद का आंसर खुद रॉन्ग किया है तुम, ऐसा सिचुएशन आता है एंड में। इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करता है, ये मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हम बोल रहा है इतना डबल चेक करो। डबल चेक कौन सा चीज़ करेगा, हम बोल रहे हैं डबल चेक करने का चीज़, बैलेंस शीट का आंसर चेक करो, वो सब, क्योंकि कॉम्पेंसेटिंग एरर हो सकता है बोथ साइड में, कुछ जैसे 10,000 का बिल्डिंग और 10,000 का क्रेडिट अगर हटा दिया ना, तब भी बैलेंस शीट एग्री कर जाएगा, ये बात है। तो ये मतलब हम जो बोल रहे हैं ना, ये अभी बिजनेस स्टडीज़ मतलब अकाउंटेंसी या फिर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये हर चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू से है, हर चीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये सब का जो है ना, ये सब का स्टेप्स, ये सब मतलब मिलाओ, अगर मिलाना ही है तो आंसर मिला दो, इसका वैल्यू कितना आया। और वैल्यू मतलब यहाँ में कुछ टेक्निक्स भी है, वो सब टेक्निक्स हम बाद में सिखाएगा, अभी नहीं, वो सब अभी नहीं, वो एग्जाम का पहले होता है, वो सब ऐसे होल टेक्निक्स होता है। जैसे तुम जो आंसर निकालना ना, अभी डाउट है, या फिर किसी को होता है, मिलाने का कोशिश करेगा, तो मिलाने का कोशिश करेगा क्यों, तुम मिलाने का कोशिश करने जाएगा, एग्जामिनर पकड़ेगा, उल्टा तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा, पेपर ले लेगा। बेइज्जती ही नहीं होगा क्या पूरा कॉलेज का सामने, स्कूल का सामने, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है, बेइज्जती हो जाएगा। हम कुछ चीज़ सिखा देगा, क्रॉस चेक करने का टेक्निक सिखा देगा, क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा, उसका हिसाब से अगर क्रॉस चेक करेगा तो तुम्हारा मिल जाएगा, और किसी का साथ पूछने का जरूरत ही नहीं है। और ये चीज़ भी बोल रहा है, एग्जाम में इतना डिलेड दिन बन के हेल्प करने मत जाओ, खुद का पेपर अच्छे से सॉल्व करो। हम वो बात नहीं कर रहे, हम भी अपना मैथमेटिक्स एग्जाम में, मतलब कमर्शियल मैथमेटिक्स एग्जाम में एक लड़की को हेल्प किया था, एक स्टूडेंट को हेल्प किया था, पर वो वैसे नहीं किया था, पेपर बहुत ईजी था, हम पढ़ा भी बहुत था, तो मेरा पेपर मतलब क्या बोलेगा 45 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो गया। हमको 50 में 46 मिला, 46 हमको मिला। कुछ थ्योरी पार्ट में लगता है कुछ गलती हो गया हो, थ्योरी इतना पढ़ता नहीं है हम, एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम ज़्यादा देखते हैं, थ्योरी समझ लेता है, खुद का भाषा में लिख देता है, तो ट्रांसलेट कर देता है, हम बंगाली में समझता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आ जाता है। तो हम उस लड़की को फिर पूरा पेपर दिखा दिया, कोई बात नहीं था, मेरे पास टाइम था, डिवीजन सब हो गया। हम बोला अगर हम पेपर यहाँ में रखेगा, तुम देख सकता है तो देखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रिस्क मत लेना, तुम पेपर आगे मत करना, अगर आगे आना है तो वो आगे आएगा, तुम आगे मत आना, जरूरत उसका है, तुम्हारा नहीं है, ये सब समझ लो। हाँ, वो सॉल्व करता है। द क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 42 liters of paint contains paint and thinner in the ratio 4:3. How many liters of thinner must be added to it in order that the mixture may contain paint and thinner in the ratio 4:5? ये नया रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो मतलब अभी हिसाब कर लो, मतलब टोटल 42 लीटर्स था ना,
तो 42 लीटर्स में पेंट कितना था, थिनर कितना था, ये पहले निकाल लेगा। ये सब टेक्निक है। जैसे अमाउंट ऑफ पेंट 42 लीटर्स इंटू 4/7 मतलब 24 लीटर्स। ऐसा करके अमाउंट ऑफ थिनर, ये आशा करता है तुम लोग को समझ में आ गया 7 कैसे हुआ, क्योंकि टोटल 4:3 था, तो 4 भाग का मतलब 7 भाग का 4 भाग, ये है वो सिस्टम। तो ये वाला समझ तो आ जाना चाहिए, बाकी मालूम नहीं है तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं है। टोटल प्लस कर दिया, 4 + 3 7, तो टोटल 7 आ गया। तो वैसे ही 42 इंटू 3/7, क्योंकि 3 भाग का वो था, थिनर था, तो 18 लीटर्स। अभी क्रॉस चेक करने का भी तरीका है, यहाँ में अगर कुछ गलती किया ना, इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करने से 42 आएगा। अगर 42 नहीं आया तब तुम कुछ गलती किया है, यही तो चीज़ है ना, यही तो सिस्टम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल था 24 और ऐड किया क्या है, ऐड तो पेंट नहीं किया है, किया ऐड है थिनर। तो पहले कितना था, 18 था, और फिर थिनर ऐड कर दिया। कितना ऐड किया है नहीं मालूम, वो निकालेगा तो x निकाल दिया, उसको x रख दिया, तो टोटल इतना है, उसमें से पेंट इतना है। तो नया रेशियो जो दिया है वो तो क्वेश्चन में दे ही दिया है, 4:5। 4:5 मतलब क्या, 4 / 5, 4:5। सो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये में हो जाएगा 72 + 4x = 120। अगर इसको इससे माइनस करके यहाँ में लाया तो ये हो जाएगा 4x = 48, तो x का वैल्यू 12 निकल जाएगा। यही आंसर है, यही आंसर है। ये सब सम्स आता है, मतलब एग्जाम में ये सब सम्स देता है, ये सब इम्पोर्टेंट सम्स है। ऐसा चीज़ नहीं है कि फेक दे सके, ये सब इम्पोर्टेंट सम्स है, सब इम्पोर्टेंट सम्स है, एग्जाम में आता है। और अभी और एक सम करता है ये करके, आज मतलब आज थोड़ा काम भी है, आज बिजी है थोड़ा ज़्यादा, तो तब भी टाइम मिला है, थोड़ा बना लेता है। ये लास्ट सम है आज का, ये वाला करके आज का वीडियो यहाँ नहीं ख़त्म कर देगा और ज़्यादा लेट नहीं करेगा। 3 equal jars, 3 equal jars are filled with mixture of spirit, 3 equal jars are filled with mixture of spirit and water in the ratio देखना पड़ेगा रेशियो कितना था। एक मिनट, बुक लेना पड़ेगा, बुक में क्वेश्चंस लिखा हुआ है। 5:3, 3:1, and 9:7 respectively. The contents of 3 jars all emptied into a single jar. आज थोड़ा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है यहाँ में, पहला वाला सब में ठीक था। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन न्यू जार। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करता है, फटाफट करेगा, एकदम अच्छे से समझना। अमाउंट ऑफ स्पिरिट इन फर्स्ट जार 5:8, मतलब 5/8। 5 था, 8 था, समझ गया होगा। ये सब तो इजी है। ऐसा क्या, पहले अमाउंट ऑफ स्पिरिट निकालेगा, फिर अमाउंट ऑफ वाटर निकालेगा, ऐसे ऐसे करके टेक्निक कर देगा, फिर टोटल स्पिरिट निकालेगा, टोटल वाटर निकालेगा, उसके बाद जो रेशियो दिया है उसका हिसाब से भाग करके दे देगा। यहाँ में कुछ, ये बहुत इजी सम है, ये क्वेश्चन देख के एकदम डरना मत, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ये मतलब ना, ये इस सब से भी इजी है, इसमें कुछ एज्यूम करने का है ही नहीं। तुम पहले निकाल लो टोटल कितना, मतलब फर्स्ट
जार में कितना स्पिरिट है, सेकंड जार में कितना स्पिरिट है, थर्ड जार में कितना स्पिरिट है, फिर इन तीनों को प्लस कर दो तो टोटल स्पिरिट मिल जाएगा। ऐसा करके फर्स्ट जार में कितना वाटर है, सेकंड जार में कितना वाटर, थर्ड जार में कितना वाटर है, ऐसा करके प्लस करो तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। फिर रेशियो निकाल दो ना उन दोनों का, डिवाइड कर दो, हो जाएगा आंसर अमाउंट ऑफ स्पिरिट इन सेकंड जार। सेकंड जार में कितना था 3:4, मतलब 3/4 था। अमाउंट ऑफ स्पिरिट इन थर्ड जार 9:16, टोटल अमाउंट ऑफ स्पिरिट। यही टेक्निक है निकालने का। 5/8 प्लस 3/4 प्लस 9/16, तो इसको निकालेगा तो निकलेगा 31 डिवाइडेड बाई 16। एलसीएम लेके निकाल लो। ऐसा करके सेम मेथड से अभी पेज टर्न करना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। हाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर थ्री बाई एट इन फर्स्ट जार, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेकेंड जार। सेकेंड जार में कितना था, सेकेंड जार में 1/4 था। हाँ क्वेश्चन नीचे रखा हुआ है इसलिए फटाफट कर रहा है। क्वेश्चन हमेशा सामने रखो। हाँ अमाउंट ऑफ वाटर इन थर्ड जार, थर्ड जार में था 7/16, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर 3/8 प्लस 1/4 प्लस 7/16, 17/16 यही आएगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, हम रिक्वायर्ड रेशियो लिख रहा है, तुम लोग लिख देना, आप लोग लिख देना कि रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। तो स्पिरिट पहले था, तो स्पिरिट एंड वाटर, तो वाटर कितना था, वाटर था 31:16, तो लिखना 31:16 डिवाइडेड बाई 17 डिवाइडेड बाई 16। तो और क्या होगा 31 डिवाइडेड बाई 17, इसका और एक दिखा रहा है जैसे 31 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 17 चेंज हो जाता है ना। तो 31 डिवाइडेड बाई 17 नथिंग इज, इट इज़ बट 31:17। तो ये सब टिक है ट्री, मतलब इजीली मतलब सॉल्व करने का सम, मतलब क्वेश्चन बड़ा होने से कोई बात नहीं है। और एक चीज़ सिखा रहा है ये वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का डेफिनेटली काम में आएगा। ऐसा स्टूडेंट है जिस पेज हमारा, हम ही ऐसा स्टूडेंट है, पेज अगर चेंज करने जाएगा ना तो यहाँ में ये दूसरा पेज में जब जाएगा, दूसरा पेज में जाएगा, यहाँ में हम अमाउंट गलत लिख देगा, यहाँ में एक अमाउंट लिखेगा, यहाँ में और एक लिख देगा। इसका टेक्निक क्या है, यहाँ में है ना, यहाँ में जैसे सपोज यहाँ में एक अमाउंट है, तुम पेज को ऐसा करके फोल्ड कर लो और यहाँ में वो अमाउंट लिख दो, तब कुछ गलती नहीं होगा। यहाँ से देख देख के यहाँ में लिखेगा, उसके बाद पूरा पेज फोल्ड करके सम करो। ये टेक्निक है, ये सब बहुत सारा टेक्निक है मेरे पास, एक नहीं है, बहुत सारा टेक्निक है जो एग्जाम में बेनिफिट करेगा तुम लोगों का। पर तुम लोग सपोर्ट नहीं शो करते तो हम भी इतना एनकरेजमेंट नहीं लेता, मतलब दिखाने के लिए टेक्निक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर देना। मेरा कुछ भरोसा नहीं है, आज मिक्सचर करा रहा है, कल क्वाड्रेटिक करा देगा, परसों लीनियर इक्वेशन करा देगा, कुछ फिक्स नहीं है मेरा। मीन मीडियन मोड भी करा दे सकता है, कुछ मतलब फिक्स ही नहीं है। जिस दिन जो टॉपिक मन करता है वही टॉपिक लेके हम बैठ जाता है, जो लोग डिमांड करता है आप लोग वही लेके बैठ जाता है। इसलिए बोल रहा है नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी कुछ नया मिलेगा बनाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।